So what we're going to do today is a continuation of regression, and in this we are going to cover certain numerical properties which we were not able to cover in the previous class. And the numerical properties are very distinct from the statistical properties, guys. These are numerical properties of OLS estimators, and irrespective of the classical linear regression assumptions. So let's see this through. A part of this is in my handwritten notes, so you can probably see it through there as well. So if you see, I had already solved for a couple of properties. Let's write them down. The numerical properties, key numerical. I'm writing only the key ones. First is basically your expected value of mu will be equal to 0, or even the fact that expected value of E will be equal to 0. Now, how do we do that? We see this. So we know this the first normal equation. The first normal equation जो हमारी आई थी उसमें क्या किया था हमने? We did summation EI square upon summation B1. जब हमने वो इक्वेशन सॉल्व करी थी, तो वी गॉट दिस एज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन के लिए जो हमारा डेरिवेटिव था वो ये था. एंड ऑल यू नीड टू डू इज दिस इज बेसिकली वाई आई एंड दिस इज वाई आई हैट. वाई आई माइनस वाई आई हैट इज बेसिकली योर ई आई. सो यू गेट summation EI is equal to 0 and sum of all errors basically. तभी तो वो बेस्ट फिट लाइन है जब sum of all errors 0 हो रहा होगा, तो उसका अगर आप मीन भी लोगे तो भी वो 0 है. तो always remember, is there a doubt guys? Anyone? So if the sum of errors is 0, the mean will always also be equal to 0. इसको n से भी डिवाइड कर दो तो भी 0 आ जाता है. The second important thing is the deviation form. Let me write it down here because this is an important thing which you will be needing throughout your course. ये काफ़ी important है guys. Please note it down and highlight it later on at the back of your this thing notebook. Deviation form. Now deviation form क्या है? Deviation form के अंदर, so if you write about the deviation form के अंदर what you do is आपका yi है, yi is equal to b1 plus b2 xi plus ei. पहले तो ये क्या है? ये आपकी stochastic form है, stochastic form sample regression function. And you also know that your sample regression function will definitely pass through one point, which is y bar is equal to b1 plus b2 x bar. ये आपका सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन से भी आ गई थी. गाइस याद है ये दोनों चीज़ें? ऑल ऑफ यू, हाँ कि ना? गाइस प्लीज़ एक तो इंटरेक्ट करो. दूसरी चीज़, यू नीड टू गेट बैक आफ्टर द क्लास एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस. आई एम टेलिंग यू, OBE or no OBE, this subject will haunt you if you don't study it. There are only two major subjects that you need to focus on, Micro 2 and Econometrics. Both of these subjects can easily come to haunt you, and especially Econometrics. Micro तो फिर हो सकता है कभी ना कभी भाग सकते हो उससे. Econometrics से बिल्कुल नहीं भाग पाओगे. So please after the class you have to spend 90 minutes, 60 to 90 minutes on Econometrics. चलो, what you need to do is just subtract this minus this. So you will basically get yi minus yi bar is equal to, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से. You will get b2, x2 लिख दिया मैंने, x bar होना चाहिए था, xi minus x bar plus ei. This is called as the deviation form. इसको हम deviation form बोलते हैं. Anything, subtract any variable from its mean, तो आप उसको small उसमें लिख सकते हो, indent में. So you can write this as small yi is equal to b2 small xi plus ei. This is called as the stochastic deviation form. I'll explain this stochastic deviation form in a diagrammatic way भी as well. ये diagrammatically भी explain हो सकता है, इसका diagrammatic explanation भी है, but that I'll do a little later. ठीक है, कि वो कैसे है diagrammatic उसका explanation. इसी का नॉन स्टोकेस्टिक फॉर्म क्या होगा गाइस? कैन समवन आंसर गाइस? इसका नॉन स्टोकेस्टिक फॉर्म क्या होगा? नॉन
डेविएशन फॉर्म क्या होगा गाइस, एनी आइडिया? यस एग्जैक्टली, विदाउट EI तो this will be equal to yi is equal to b2. This is your non-stochastic form, deviation form. तो ये आपका, ये भी आपको याद रखना है गाइस, yi hat होगा, non-stochastic form, deviation form, ठीक है. Now the issue is कि how do you go about the other two properties? Property number 4, your next important property is that your errors and your x are not correlated. So the property is no correlation between errors and, which basically tells you that summation ei xi is equal to 0. ठीक है, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ei xi is equal to 0 भी लिख सकते हैं. हाउ डू वी गेट दिस? वी गेट दिस फ्रॉम द सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन. आप सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन का एक्सपेंशन देखोगे तो बेसिकली इफ यू डू ei स्क्वायर अपॉन p2 ये करोगे, you will eventually get this equation -2 summation yi minus b1 minus b2 xi into xi is equal to 0. ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आएगी, ठीक है. ये बेसिकली स्क्वायर था तो ये स्क्वायर यहाँ पर आ गया और फिर आपने उसका प्रोडक्ट रूल लगा दिया. सो दिस इज चेन रूल लगा दिया, तो दिस इज व्हाट यू गेट. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट what can I write this as guys? इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस, चेक इट, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? what can I write this? ei exactly. इसको हम लिख सकते हैं -2 summation ei xi is equal to 0. बस हो गया, this is equal to 0 प्रूव हो गया हमारा, ठीक है. there is, that means हमने देखो यहाँ पर कोई अजम्पशन नहीं ली, बाय द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ OLS हमने ये प्रूव कर दिया कि द एरर्स आर टू बी नॉट टू बी कोरिलेटेड विद xi's. एंड द फोर्थ, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट द एरर्स शुड नॉट बी कोरिलेटेड टू द y टर्म एज वेल, ठीक है. सो दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट summation yi ei should be equal to 0. Now how do we prove this? How do we prove this part कि summation yi ui is equal to 0? हमें yi hat की हमें वैल्यू हमें summation ये प्रूव करना है. summation yi hat ei जो है वो 0 है. and to prove this what we can use is the property अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला था कि yi इज इक्वल टू yi hat इज इक्वल टू b2 xi, ये हमारा स्टोकास्टिक डेविएशन फॉर्म आ रहा था, ठीक है. I'll प्रूव दिस डायग्रामेटिकली भी, अभी डोंट वरी कि ये कैसे आया, ये डायग्रामेटिकली भी अभी हम देखेंगे, ठीक है. बट ये SRF है इन डेविएशन फॉर्म, ये SRF है इन डेविएशन फॉर्म, तो हम इसको भी प्रूव करके देखेंगे. बट इस रिजल्ट से वी कैन प्रूव दिस. हाउ? what you need to do is just put in this value. तो हम can I write this as b2 summation xi ei, ये लिख सकता हूँ? just check guys, can I write it like this? yes या no? पक्का साथ साथ कर रहे हो guys? राधिका, are you writing simultaneously? good. प्रीति, ईशानी, आयुषी, अरे साथ में लिख रहे हो कि सो रहे हो? आवाज़ तुम्हारी सोने वाली है, चलो वेक अप. तो प्लीज गाइज साइमल्टेनियसली लिख लो, ट्रस्ट मी यू विल फॉल इनटू ट्रबल बाद में. नाउ सो दिस इज वेयर यू गेट, यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज इसके अंदर आप ei की जो वैल्यू है वो आप रिप्लेस कर दो जो हमने स्टोकास्टिक फॉर्म से हम लेके आए थे. सो यू कैन राइट दिस एज b2 summation xi into yi minus b2 xi. ये कहाँ से आया गाइस? ये कहाँ से आया होगा? सोचो. स्टोकास्टिक फॉर्म, एग्जैक्टली अंशिका, स्टोकास्टिक फॉर्म से. गाइस डोंट टाइप इन, अनम्यूट करके बोलो. हाँ, तो स्टोकास्टिक फॉर्म से आया है ये चीज़. नाउ व्हाट वी नो इज अब हम अगर इसको ओपन अप करके कर लें
नाउ इफ वी ओपन दिस अप, कैन यू थिंक कि हमारा क्या होगा इसका? कैन यू ब्रिंग इट डाउन टू जीरो गाइस? कुछ सोचो क्या करोगे इसके अंदर? ओके, लेट मी राइट इट डाउन, डोंट वरी। b2 summation xi yi minus b2 square summation xi square. नाउ कैन यू थिंक? अब सोच सकते हो गाइस क्या करोगे इसके बाद इसको जीरो डालने के लिए? यू नो b2 की वैल्यू क्या है? यस एग्जैक्टली, बस आपको यही तो वैल्यू डालनी है। ये जो है इसको रिप्लेस कर दो ये इस चीज़ से, सो यू विल बेसिकली गेट b square summation xi square minus b2 square summation xi square is equal to 0. ठीक है, all we are saying is proof अलग जगह है। all we are saying is that the error terms are not correlated with the value of the predicted value through the sample regression line. इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? नहीं तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि अगर एरर्स भी रिलेशन रखने शुरू कर दें y के साथ तो वो एंडोजेनस इस तरीके से हो जाएंगे कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे वैल्यू। वो सिर्फ b की वजह से चेंज नहीं, वो सिर्फ x की वजह से चेंज नहीं कर रहे, वो सिस्टमैटिकली एरर की वजह से भी चेंज कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक इशू आ जाएगा। वी विल जस्ट गो थ्रू दिस when we solve the classical जब हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आएंगे तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि ये कैसे या फिर लेट मी शो दिस टू यू डायग्रामेटिकली अभी, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, अगेन दिस डायग्राम गाइज इज नॉट गिवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू थ्रू अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस। ना हमारी एक सैम्पल रिग्रेशन लाइन आई, ठीक है, पहले तो यहाँ पर हम x बार y बार, योर सैम्पल रिग्रेशन लाइन विल डेफिनेटली पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट x बार y बार, ठीक है, हमने एक लाइन बना दी, ये हमने हमारी सैम्पल रिग्रेशन लाइन है। सैम्पल रिग्रेशन लाइन क्या होगी? सैम्पल रिग्रेशन लाइन इज योर yi hat इज इक्वल टू b1 प्लस b2, ठीक है। नाउ यू टेक अ पॉइंट yi। अब हम अगर इसको डेविएशन फॉर्म में, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। पहली बात ये आपका एरर है, ठीक है, ये आपका एरर है, और सी वॉट दिस इज टेलिंग यू, ये देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस कंटेक्स्ट। आपकी एक्स आई की वैल्यू ये आई, और व्हाट कैन आई राइट दिस गाइज, व्हाट विल बी दिस, यहाँ पर ये क्या होगा, क्या लिखूंगा इसके, ये क्या होगा? कैन समवन टेल मी गाइज व्हाट इज दिस वैल्यू? इसको हम क्या बोलते हैं? वाई आई हैट। ये तो वो वैल्यू आई है ना जो आपने सैंपल से प्रिडिक्ट करी है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट अगर आपका x जो है, अगर आपका x जो है x बार से कुछ डिफरेंट होता है, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सारी x बार है पूरी इसकी, ये आपका इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप सैंपल मीन के x से, मतलब एवरेज इनकम से दूर जाते हो, जिस बंदे की इनकम एवरेज इनकम से ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, दिस इज डिविएशन फ्रॉम मीन। व्हाट इज दिस? what can I write this as? बताओ गाइस, कैन आई राइट दिस एज समथिंग xi माइनस x बार एग्जैक्टली विच इज स्मॉल xi, यही रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज। नाउ द अदर थिंग, तो ये बता रहा है कि अगर आप, हमारा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बता रहा है कि अगर आपकी इनकम एवरेज इनकम से इतनी दूर है तो आपका जो स्कोर होगा वो एवरेज स्कोर से इतना दूर होगा। आर यू विद मी गाइज? यही तो बता रहा है, एवरेज स्कोर आपका ये होना चाहिए। अभी आपका स्कोर ये है, तो ये बेसिकली लाइन क्या बता रही है कि अगर आपका, और ये एक्सप्लेन कर पा रहे हो दैट इफ योर इनकम इज, अगर आपकी इनकम इतनी ज्यादा है तो आपका स्कोर एवरेज स्कोर से इतना ज्यादा होगा, एंड दिस इज वाई आई हैट माइनस वाई बार। व्हाट विल यू राइट दिस एज गाइज? वाई आई हैट माइनस वाई बार गाइज। So basically what you are saying is that this is yi hat, small yi hat। समझ में आया गाइस? हाँ कि ना? कि अगर आपकी इनकम इतनी दूर है एवरेज से तो आपका रिग्रेशन फंक्शन बता रहा है कि आपका स्कोर इतना दूर होना चाहिए, इस इनकम के ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए इतना दूर एवरेज से। दिस इज स्मॉल yi hat which is nothing but b2 into xi।
क्योंकि ये क्या है, ये यही तो स्लोप है B2 का। एंड आप कितना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो वो ये है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। और इसको अगर मैं पूरे उसमें लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ये क्या है, व्हाट इज दिस गाइस, कैन समवन आंसर कि व्हाट इज दिस। नहीं, स्मॉल वाई तो नोटेशनल टर्म है, बट ओवरऑल क्या बोलूंगा मैं इसको, टोटल डिविएशन कितना हुआ, टोटल इनकम, टोटल स्कोर में डिविएशन कितना हुआ। ओवरऑल मेरी इनकम इतने से बढ़ी बट मेरा स्कोर इतने से बढ़ गया, तो ये टोटल डिविएशन आई है जो एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड है। इतना तो आप एक्सप्लेन कर दिया आपने, इतना पोर्शन तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, इतना पोर्शन तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, इतना पोर्शन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये जो है ऑरेंज लाइन, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली योर टोटल डिविएशन yi minus y bar which is equal to small yi. So I can write small yi as yi hat plus ei, or I can write this as b2 xi plus ei. Are we clear on this guys? ये आपका डेविएशन फॉर्म है। और अगर आपको SRF को लिखना है, इसको डेविएशन फॉर्म में, इस लाइन को डेविएशन फॉर्म में लिखना है, तो इस लाइन को डेविएशन फॉर्म में कैसे लिखोगे, yi hat is equal to b2xi. क्लियर गाइस? एक मिनट रुको, मुझे आवाज नहीं आ रही, बोला। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया। अंशिका, व्हाट इज योर पॉइंट? Sir, please repeat the total deviation part. टोटल डेविएशन, देखो टोटल डेविएशन कितना होता है कि मेरी इनकम चेंज हुई यहां से यहां, ठीक है। मेरी एवरेज इनकम सपोज एक्सपेक्टेड थी 450, मेरी एवरेज इनकम थी सपोज एक्सपेक्टेड थी सपोज 450, मेरी इनकम हो गई 500, तो जो पूरी पॉपुलेशन की इनकम थी 450 थी, 500, तो 50 इनकम इंक्रीज हुई। 50 इनकम इंक्रीज होने पे मेरा स्कोर जो है वो 100 पॉइंट, ये स्कोर जो था 300 होना चाहिए था, ये 400 हो गया या 500 हो गया, 200 से स्कोर बढ़ गया। सो स्कोर टोटल कितना बढ़ा, 200। टोटल डेविएशन फ्रॉम द मीन एवरेज आपका क्या होना चाहिए था, एवरेज स्कोर तो होना चाहिए था 300, बट किसी बंदे का स्कोर आ रहा है 500, तो आप टोटल डेविएशन क्या बोलोगे कि 200 का डेविएशन आ रहा है। एंड इस 200 का जो डेविएशन है, हाउ कैन इट बी एक्सप्लेन्ड, अ पार्ट ऑफ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू दिस, कि उसकी इनकम भाई इतनी से हो गई, एंड बिकॉज उसकी इनकम इतने से ज्यादा हो गई इनटू B2, क्योंकि हर इनकम इंक्रीज होने पे B2 अमाउंट से स्कोर बढ़ जाता है, तो B2 इंटू इनकम इंक्रीज अगर मैं कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना उसका एक्सपेक्टेड स्कोर बढ़ना चाहिए था। तो ये आ गया कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर तो इतना होना चाहिए था। ये जो है ये हम फैक्टर्स काउंट नहीं कर पाए, सो ये अनएक्सपेक्टेड। सो दिस इज नथिंग बट योर टोटल डेविएशन, दिस इज योर एक्सप्लेन्ड डेविएशन, एंड दिस इज द अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन। समझ में आया अंशिका? Any other doubt guys? And again I'm telling you guys, you will not find this explanation, so you would have to rely on the class notes, and the more that you write the better understanding you will get about it. Chalo, let's move on to certain statistical properties. ठीक है, statistical properties पे आते हैं, but statistical properties से पहले let's see how we put it all together. ये आपका fitted line आ गई, ठीक है। इसको हम फिटेड लाइन भी बोलते हैं गाइस, ठीक है, रिमेंबर, हम फिटेड लाइन भी बोलते हैं, जो हम रिग्रेशन लाइन जो फिट करते हैं उसको हम फिटेड लाइन भी बोलते हैं। एंड रॉ डेटा से इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट इट। जस्ट अ सेकंड गाइस, यस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फिटेड लाइन गाइस, एंड जस्ट रीड ऑन टू दोज एग्जांपल्स। कुछ नहीं है, एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं, इफ यू रीड देम थ्रू यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट थिंग्स। Let's scroll it down at the next chapter. So we have reached the stage of hypothesis testing with two variable regression model. तो हमने जो अभी करा था, जो B1 और B2 की वैल्यू निकाली, those were point estimates. Now what we need to do is we need to find out what is the range in which B1 and B2 can probably lie. So let's write it down. Chapter 3, hypothesis testing in two variable regression. ठीक है, this is what we are going to do. Now hypothesis, इससे पहले जो हमने चैप्टर में किया था उसके अंदर हमने B1 and B2 की वैल्यूज निकाली. These are
what are these guys? what do we call them as? क्या बोलते हैं हम उनको स्टैटिस्टिकल टर्म्स में? पॉइंट एस्टिमेट. पहले एस्टिमेटर्स, फिर उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉइंट एस्टिमेट होगी. ठीक है, दीज आर एस्टिमेटर्स. और जब भी कंफ्यूजन हो, ऑलवेज रिमेंबर B1 B2 समथिंग लाइक x बार, जो एस्टिमेटर है ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स. एंड इनकी जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, इफ यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर वैल्यू, दोज आर कॉल्ड एज पॉइंट एस्टिमेट. नाउ what are we trying to gain in this chapter is that we want to have an interval of B1 and B2, and in that interval we can probably judge whether our true population parameters lie in that. Okay? और hypothesis testing करेंगे. It's something very very similar to जो हमने पिछले उसमें किया था, whereby we created an interval of this standard error of x bar. हमने इस तरीके से एक इंटरवल निकाला था, और इस इंटरवल के अंदर we said that with some probability this value can lie. And remember, this interval was in itself a random interval. ठीक है, ये हमारी डिस्कशन भी हुई थी. Now let's, on a similar note, let's start with our discussion on this chapter. Now you have a fitted regression line. ये आपकी fitted regression line है, which basically says that on an average, can someone tell me what this regression line means? Guys, can someone explain it to me? कि regression line क्या कह रही है in simple English? What is this regression line, guys? I can't, Swasti, I can't hear you properly. तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है, थोड़ा क्लियर आवाज में. Am I audible now? हाँ, you are audible now. So change in xi will lead to a 0.013 percentage of change in xi plus a constant that is 432 point. I can't see that. 4324138. that will give परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है. जब तुम परसेंटेज पे चले गए तो तुम लॉग मॉडल पे चले गए, तुमने इसको इलास्टिसिटी बना दिया. दिस इज नॉट इलास्टिसिटी. परसेंटेज नहीं, डेसिमल बोलो, मुझे दिख नहीं रहा था कितना डेसिमल है. डेसिमल चेंज है. तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि इसको, अगर कई बार ऐसे मॉडल्स को इंटरप्रेट करने के लिए एक तरीका होता है. तो आप इसको अगर बोलो कि मैं 1 रुपये अगर फैमिली इनकम बढ़ाऊंगा तो मेरे इतने से पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा व्हेन यू पुट इट आउट टू सपोज यू आर इनटू अ बिजनेस सिनेरियो, तो आपको ये रिग्रेशन लाइन कोई आप समझाना है सब किसी को, तो आप इस तरीके से समझाओगे दैट इफ माई फैमिली इनकम इंक्रीजेज बाय $1,000 then my score increases by 1.3 points. Can I say this, guys? हाँ कि ना? समझ में आया जो मैंने बोला? If my income increases by $1,000, my score will increase by 1.3 marks. सोच के देखो, समझ में आया कि नहीं आया? Guys, yes, no, टाइप करो, बोलो कुछ. Okay. Basically, income आपका income points में थी, तो मैंने उसको I have just converted, I have just multiplied by 1,000. तो उस तरीके से you can, and this is the average score that you will probably get. ये आपका इंटरसेप्ट हो गया. सो नाउ वी नीड टू सी दैट हाउ गुड आर वी विद द एस्टिमेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन. ठीक है, दैट इज बेसिकली वी वांट टू सी दैट वेदर द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इज अ गुड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. इज दिस अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PRF or not? Now we basically cannot answer this unless we are more specific about PRF. Basically, your PRF depends on what? Your wide I depends on 2 factors, xi and ui. ये आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के अंदर xi और इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है. Just a second, guys. Just charge my laptop. Yeah. So you need to your yi's are dependent on 2 factors. One is your xi's and other is your ui, because yi is nothing but beta 1 plus beta 2 xi plus ui. ये आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है स्टोकास्टिक टर्म्स में. xi's जो है वो नॉन स्टोकास्टिक है. ठीक है, बट एंड द एरर टर्म्स आर रैंडम और स्टोकास्टिक. हमने ये पता है कि हमारे स्टोकास्टिक टर्म्स हैं. तो बेसिकली योर yi's आर मेकिंग योर ui's आर मेकिंग योर yi's स्टोकास्टिक टू. ये हमने पहले भी बात करी थी. ठीक है, which basically means that we need to have a certain assumption on how ui's are generated. ये जो रैंडम वेरिएबल है इसके जनरेशन के ऊपर हमें
एक कुछ अजम्पशन बनानी पड़ेगी, बिकॉज जब आप इसके ऊपर कुछ अजम्पशन बना पाओगे, we will be able to tell something about that how good or bad is your SRF as an estimate of PRF. तो आपको इसके ऊपर एक अजम्पशन बनानी पड़ेगी सो दैट आपको YI के बारे में पता चले कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि जो मैंने एस्टिमेट किया है YI हैट वो कहाँ पर लाई कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज what you need to do. See this, just read this through. That this means that unless we are willing to assume how the stochastic terms are generated, we will not be able to tell how SRF is a good estimate of the true PRF. So, and that assumption, that key assumptions that you make about UIs, the generation of UIs, is what is called as the classical linear regression model. So your classical linear regression model, guys, do remember that your classical linear regression model revolves around the assumptions of the error term majorly. अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ हमने B1 और B2 की वैल्यूज निकाली थी थ्रू दी OLS एस्टिमेटर्स, बट उनकी वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती अबाउट ऑन दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ UI. तो B1 एंड B2 जो हैं, जो हमने निकाला वो सिंपल हमने OLS से निकाल लिया था. ठीक है, और ये B1 एंड B2 की वैल्यू एक्चुअली डिपेंड नहीं कर रही वो जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू निकाल लिया था वो डिपेंड नहीं कर रही UI की अजम्पशंस के ऊपर. बट जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाहते हैं, गाइस रिमेंबर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन किसकी चाहिए थी? x बार का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था ना गाइस. विदाउट x बार के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई कैन नॉट ड्रॉ दैट रेंज, मुझे वो रेंज नहीं मिल पाएगी. और x बार का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे मिला था? कैन समवन एनलाइटन, कैसे मिला था हमें x बार का डिस्ट्रीब्यूशन? गाइस x बार का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिला था हमें? x बार का डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? व्हाट आर दी टू पैरामीटर्स ऑफ x बार डिस्ट्रीब्यूशन? अपराजिता बोलते के साथ ही दीक्षा यू देयर, कनिष्का, सिमरन, मानवी, किसी को तो आता होगा x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? अरे नॉर्मल था, बट पैरामीटर्स क्या थे डिस्ट्रीब्यूशन के? स्टैंडर्ड एरर क्या था? स्टैंडर्ड एरर इट वाज म्यू, एंड ये याद आया? और ये कहाँ से आया था? कौन सी थ्योरम से हमने निकाला था? CLT से निकाला था गाइस. डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, अगर आप उसका सैम्पलिंग लोगे तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सैम्पल मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो यही फॉलो करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने ये सैम्पल मीन्स किस डिस्ट्रीब्यूशन से लिए थे. दैट मीन्स CLT ने आपको क्या दिया? CLT ने आपको x बार का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, और बिना x बार के डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास तो एक ही x बार आया था ना पूरे सैंपल से. आपने CLT से अपने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर ली कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x बार की, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके यू कुड फाइंड आउट द रेंज. सिमिलरली आपको सिर्फ एक B2 पता है. अग्रीड गाइस? आपको सिर्फ एक B2 पता है, आपको बीटा 2 की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगी. अग्रीड गाइस? यस और नो? इजंट दिस एनालोगस? व्हाट आर वी सेइंग? वी आर सेइंग कि हमें जिस तरीके से हमारा x बार था, एक x बार था, हमें x बार का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए था, जो हमें CLT ने दिया था, और CLT ने कहा मीन होगा ये एंड वेरिएंस होगा. ठीक है. सिमिलरली अगर हम अभी बात करें तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक B1 दे रखा है, BI दे रखा है, वो B1 ले लो, B2 ले लो, इसको BJ लिखते हैं एक्चुअली, BJ दे रखा है. ठीक है, और आपको पूरी बीटा J की आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगी, और बीटा J की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी विल सी इज बीटा J की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यू विल नीड UI का डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि हर एक UI का जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा गाइस, ट्राई टू सी दिस, जब आपको UIs का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा तो आपको YIs का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि YI किस लाइन कैसे लाई कर सकता है. और अगर आपको YI का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा तो आप कुछ बोल सकते हो कि रेंज ऑफ बीटास क्या हो सकती हैं. इससे फिर आपको बीटास का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा. ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? Sir, can you please explain this again? YI is equal to
β1 प्लस β2 xi प्लस ui। ठीक है, हमारा इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा yi कैसे वेरी कर रहा है, ये डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट है और ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट है, ये रैंडम वेरिएबल है। इस रैंडम वेरिएबल का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता हो कि रैंडम वेरिएबल इस रेंज से इस रेंज में लाई करता है, तो आप ये रैंडम वेरिएबल इसको भी रैंडम बना रहा है, तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर सकते हो। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल। आपको पता चल गया कि yi भी एक रैंडम वेरिएबल है, और अगर yi रैंडम वेरिएबल है तो आपको तो रिग्रेशन लाइन तो जो बनानी होती है वो क्या बनानी होती है, रिग्रेशन लाइन तो आपको इस yi के बेसिस के ऊपर तो आप बनाते हो। हर yi के बेसिस के ऊपर आप फिट करने की कोशिश करते हो ना अलग अलग लाइंस। तो इसके बेसिस के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा β1 और β2 की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाई करेगा। लेट्स सी दिस थ्रू। होल्ड ऑन, इससे पहले so what we need to do, guys, is that we need to say that how your betas are generated। ठीक है, we need to know that how your xi's and y and your error terms are generated, and that will depend on आगे आएगा वो चीज, the distribution of ui आ जाएगा। ठीक है, so if you see ui, चलो यहीं से देख लो ui का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ui is what, guys? ui is basically yi minus b1 b2 xi। क्लियर है गाइस, ये चीज क्लियर होगी यहाँ तक। ये तो सिंपल yi की, ये तो सिंपल ui की डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या चीज डिटरमिन कर रही है, अलग अलग एरर। व्हाट विल चेंज, जो एरर चेंज कर देगा, दैट मीन्स इसके अंदर b1 b2 के अलग अलग वैल्यूज लोगे तो आपके एरर्स चेंज होंगे। रिमेंबर वो जो मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, आप b1 b2 की अलग अलग वैल्यूज लोगे तो आपके पास अलग अलग एरर्स स्प्लाइंस आएंगी। तो दैट मीन्स योर ui's आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन योर b1 and β1 and β2। you need to basically choose your betas in such a way कि आप एरर को मिनिमाइज कर पाओ, और आपको इसके ऊपर कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अज्यूम करना पड़ेगा, सो दैट आप वो वैल्यूज चूज कर पाओ b1 and b2 की, कि एरर मिनिमाइज हो जाए। सो एवरीथिंग इन रिग्रेशन बॉइल्स डाउन टू कि आपने क्या अजम्पशन ली है अबाउट योर एरर टर्म्स। ठीक है, how ui's are generated, and in classical linear regression you have certain assumptions। The first assumption is, I'm just going to quickly go through the assumptions and then we will talk about them in detail tomorrow। The first assumption is that that this is a linear in parameters model। ठीक है, linear in parameters का मतलब आपको पता है कि बीटास की वैल्यू जो होगी वो क्या कहते हैं, पावर 1 होगा। देन द सेकेंड अजम्पशन इज कि एक्साइज जो है वो नॉन स्टोकास्टिक है। ठीक है, थर्ड अजम्पशन इज दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन एक्साई इज 0। द फोर्थ अजम्पशन इज ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई एट अ गिवन एक्साई 0 आ रही है, ये वो अजम्पशन दिखा रहा है। देन द फोर्थ अजम्पशन इज ऑफ होमोस्कैडास्टिसिटी। होमोस्कैडास्टिसिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर सारे के सारे एरर्स का जो वेरिएंस आ रहा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारी सेम है, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, इनका वेरिएंस सबका सेम है। दिस इज कॉल्ड एज होमोस्कैडास्टिसिटी का डेफिनेशन। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर टुडे इन द नेक्स्ट क्लास। देन एज कंपेयर टू दैट हम हेट्रोस्कैडास्टिसिटी भी देखेंगे कि क्या होता है। Then the other assumption, the fifth assumption is no autocorrelation, that your error terms are not correlated. And we are going to drop these assumptions one by one, guys, in the later chapters and see that how does it impact the model, just the way that you do in perfect competition। कि perfect competition में सबसे ज़्यादा assumptions होती हैं and then you relax the assumptions। And lastly, that your model is correctly specified, there is no specification error। you have correctly, जो आपकी मॉडलिंग है वो करेक्ट स्पेसिफिकेशन है। सो और वही जो मैंने आपको बताया कि दिस इज समथिंग लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो this is what we will do, guys। In the next class we will dwell a little more about on these 6 assumptions, and then we will talk about the variance of b1 b2 and how they are calculated।
So guys, today we will be covering classical linear regression model assumptions. So the first assumption that we have, which we discussed in the previous class as well, is the linearity in parameters assumption. What basically means is that your parameters b1, b2 or say till bk, all your parameters will be linear. They will be of the degree 1. Your x can be of any particular degree. That is basically called as the functional form. तो x का कुछ भी डिग्री हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स अंडर रूट हो सकता है, एक्स लॉग हो सकता है. तो वो सारे, फॉर दैट मैटर वाई भी कुछ भी हो सकता है, वाई यू कैन टेक इट एज लॉग. तो ये सारी चीज़ें इज परमिसेबल in the classical linear model. All of this is basically changing the functional form of the regression. There is a chapter on functional form in which we will cover all these forms, but still your betas, your parameters should always be linear. अगर आपकी बीटास की पावर आ जाएगी कुछ और वन के अलावा, सो देन वी विल प्रॉब्ली हैव टू गो इनटू नॉन लीनियर रिग्रेशन. ऐसा नहीं है कि उसमें रिग्रेशन नहीं होता, नॉन लीनियर रिग्रेशन होगा उसमें. देन द नेक्स्ट पार्ट इज, जस्ट अ सेकेंड गाइस. Yeah, the next assumption is that your xi's are uncorrelated with the disturbance term. ठीक है, यहाँ हमने assumption भी ले ली. Basically you're saying that if I put it in terms of the mathematical type, you can first say that your xi's are non-stochastic. ये non-stochastic हैं, ठीक है. Then you can say that you also have a property. अच्छा, वो यहाँ दे रखी है. Then the third assumption is that the expected value of your mean is for any value of x should be equal to 0. Now what does this mean? Let's see this. इसका मतलब यही है कि ये फॉर एग्जांपल ये 5000 इनकम थी, तो इस 5000 इनकम पे जितनी भी वैल्यूज़ आई वाई आई की, उन सब का कंडीशनल मीन ये है. व्हाट इज़ दिस इज़ द कंडीशनल मीन. तभी तो ये लाइन बनी है. सो ऑल दीज वैल्यूज, दीज पॉजिटिव वैल्यू एंड दीज नेगेटिव वैल्यू शुड सम अप टू 0. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई गिवन एक्स आई शुड बी इक्वल टू 0 एट ऑल एक्स आईज. समझ में आया गाइस ये assumption? This is basically nothing but stating the conditional mean in other terms. समझ में आया गाइस ये वाली assumption? And we also proved this by the way. हमने इसको SRF के लिए भी प्रूव किया था, numerical properties of SRF. Yes or no guys? Okay. Let's talk about the variance. The variance of each UI is constant and which is basically called as homoscedasticity. Now, what do we mean by homoscedasticity? Let me try down the assumptions, guys. Key assumptions. The first assumption that we did was linearity of parameters. The second assumption is your xi's are non-stochastic. Your third assumption is the expected value of ui given xi is equal to 0. The fourth assumption is, which is very important, is homoscedasticity. Homoscedasticity basically means equal variance. This is a very important assumption. और इसका जो opposite होता है वो होता है heteroscedasticity. इसका opposite है which is unequal variance. ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, this will be one of the most important chapters. ऑटो कोरिलेशन और heteroscedasticity से एक क्वेश्चन हर साल आता है. So you can pretty much say that 20 to 25 marks of your paper, or at least 25 marks of your paper will be just from these two chapters. ठीक है. So you have to understand homoscedasticity ठीक से, और only if you understand homoscedasticity ठीक से you can appreciate what heteroscedasticity is. Now what it actually means is that at a given value of xi, ठीक है, for any given value, for example आपने 5000 xi लिया, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ui's का, उसका वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा. दैट मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा या फिर y का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा. Now I've just explained this to you. Can someone frame it out for me कि क्या बोला है मैंने? कि for at a given value of xi, the distribution of
of your yi's or of your error terms will be the same. इसका क्या मतलब हुआ? Covariance between the error terms will be 0. वेरियंस ऑफ द एरर टर्म नहीं, कोवेरियंस बिटवीन एनी सेट ऑफ एरर टर्म्स तो वो ऑटो कोरिलेशन हो जाएगा. व्हाट यू आर सेइंग इज बेसिकली ऑटो कोरिलेशन, नॉट हेटेरोस्केडासिटी और नॉट होमोस्केडासिटी. हम बेसिकली कह रहे हैं इफ़ यू सी डायग्रामेटिकली, ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, फिर हम इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं. So variance will be constant. Variance will be constant, exactly, variance will be constant. Let's see this guys. If you see this, हर xi पे, हर इंडिविजुअल xi पे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है. ये सारे डिफरेंट वैल्यूज़ किसकी हैं? ये सारे डिफरेंट वैल्यूज़ yi's की हैं, और yi's अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरर्स. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो वेरिएंस है ये कांस्टेंट है. इन सब का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट है. इसका भी वेरिएंस, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, इसका वेरिएंस भी सिग्मा स्क्वायर है, इसका वेरिएंस भी सिग्मा स्क्वायर है. दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट द वेरिएंस ऑफ ui इज कांस्टेंट फॉर ऑल xi's. आप ये कह रहे हो कि हर xi पे जो वेरिएंस है एरर्स का वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. एज कंपेयर टू दिस, इफ़ यू सी दिस, यहाँ देखो आपका वेरिएंस कम था, यहाँ आपका वेरिएंस बढ़ गया, यहाँ आपका कम हो गया, यहाँ आपका कम हो गया. कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल जहाँ आपका वेरिएंस कम होगा? कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल कि जहाँ वेरिएंस कम होगा? सोचो लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम्पल सोचो जो आप बढ़ोगे तो आपका वेरिएंस कम या ज़्यादा हो सकता है. कैन समवन कम अप विद एन एग्जाम्पल कि आपकी एरर्स या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका वो चेंज हो जाएगा. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट मी गिव यू एन क्रिकेटिंग एग्जाम्पल, ठीक है, यू कैन प्रॉब्ली रिलेट टू इट. ठीक है, जब एक प्लेयर नया सपोज ये दिस इज द नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ इनिंग्स बाय अ क्रिकेटर, ठीक है, से विराट कोहली, और यहाँ पर उसके स्कोर्स हैं. जब एक क्रिकेटर जब शुरू में आता है तो वो कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है? यूजुअली जब नाइव प्लेयर्स होते हैं इनकंसिस्टेंट होते हैं प्लेयर शुरू में. जब आप टीम में आते हो तो दैट मीन्स योर स्कोर एट फ्यूअर इनिंग्स विल बी वेरी वेरी हाई. कभी बहुत अच्छा खेला, कभी बहुत पुअर खेला, कभी इस तरीके से हुआ. बट धीरे धीरे व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस, यू गेट दैट टेम्परामेंट एंड टीम के अंदर यू नो योर प्लेस इज सर्टन. देन उसके बाद आप थोड़ा सा रिलीव्ड होते हो कि अच्छा मेरी जगह तो नहीं जा रही, एंड देन यू प्ले विद कॉन्फिडेंस एंड यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑन योर हैंड. तो आपका धीरे धीरे क्या होता है, आपके स्कोर्स एक पर्टिकुलर रेंज में आने शुरू हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आएगा, बट एक रेंज में आना शुरू हो जाता है मेजरली. ठीक है, सिमिलरली समथिंग लाइक आप कैट का एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई एक एग्ज़ाम देने जाते हो GRE का, तो आपने ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम बाई चांस वो क्वेश्चंस आ गए जो आपको आते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत पुअर भी हो सकता है. बट धीरे धीरे व्हेन यू प्रैक्टिस मोर यू टेंड टू रिड्यूस दैट डिस्ट्रीब्यूशन टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट. समझ में आया गाइस कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि होमोस्केडासिटी रहेगी, लाइफ में हेटेरोस्केडासिटी भी हो सकती है. क्लियर और नॉट गाइस? होमोस्केडासिटी या हेटेरोस्केडासिटी जो अगर हम देखें तो वी विल टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ डेटा, एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ डेटा. एक हम क्रॉस सेक्शनल डेटा देखेंगे के बारे में बात करेंगे, टाइम सीरीज डेटा के बारे में बात करेंगे, पैनल डेटा के बारे में बात करेंगे. क्रॉस सेक्शनल डेटा इज जब आप अलग अलग लोगों का डेटा उठाते हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा. ये जो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल डेटा, जहाँ पर जो इनकम फैमिलीज हैं या अलग अलग फैमिलीज हैं जिनकी इनकम अलग अलग है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल. अगर मैं एक ही फैमिली का अलग अलग टाइम पे देखना शुरू करूं तो दैट इज कॉल्ड एज टाइम सीरीज डेटा. सो दैट इज कॉल्ड एज टाइम सीरीज डेटा. और जब आप टाइम सीरीज एंड साथ में अगर आप क्रॉस सेक्शनल दोनों ऐड कर दो तो उसको हम पूल डेटा बोलते हैं, पैनल डेटा भी बोलते हैं. ठीक, सो दीज आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी सी. हेटेरोस्केडासिटी इज मेजरली अ प्रॉब्लम इन क्रॉस सेक्शनल डेटा, क्योंकि हर आदमी अलग तरीके से बिहेव करेगा. हर इनकम पे जो बिहेवियर होगा स्कोर का वो अलग अलग होगा. ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल डेटा के अंदर आपको हेटेरोस्केडासिटी की प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी. सो नोट दिस पॉइंट, वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट व्हेन वी डू दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, चलो
Now let's write it down as well, guys. So what you're saying is that the variance, what you're saying is the variance of ui given xi is constant. I can write this as variance of ui minus sorry, expectation of ui minus expectation of ui given xi whole square. Can I write it like this, guys? I'm assuming you know this. And I can write this as, I can also write it as expectation of ui square given xi. This is also the way that I can write, and this is what we are saying as is, दोनों से आपके पास आ जाएगा expectation of ui square given xi is equal to, ये समझ में आया guys? Why I have been able to write this? Can someone explain, guys? Can someone explain why I've been able to write this? So because just now error will be 0, so we substituted that value. ये बस आपको वैल्यू ज़ीरो ही तो डालनी है. ये वैल्यू क्या होगी? ये ज़ीरो हो गया या ये ज़ीरो हो गया, बात तो एक ही है. हमने अजम्पशन ले रखी है इसके ऊपर, तो हमारे पास बची ये वैल्यू. और दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग, दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर गिवन एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. ना अगर मैं इसको हेट्रोस्कैडासिटी दिखाना चाहता हूँ गाइस, अगर मैं इसको हेट्रोस्कैडासिटी दिखाना चाहता हूँ तो आई विल राइट दिस एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर गिवन एक्स आई विल बी इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर. यहाँ पर देखो कोई आई नहीं है, दैट मीन्स अक्रॉस ऑल एक्स आईज ये सेम है. यहाँ पर दैट मीन्स हर एक्स आई के ऊपर डिफरेंट वेरिएंस आ रहा है. ठीक है, प्लीज नोट दीज टू थिंग्स डाउन. दिस मीन्स होमोस्कैडासिटी, दिस मीन्स हेट्रोस्कैडासिटी. ठीक है, चलो लेट्स सी अ स्मॉल प्रूफ एज वेल कि अगर ये अगर आपका वेरिएंस जो है कांस्टेंट है, देन व्हाट हैपन्स टू द वेरिएंस of yi. So what I want you to prove, guys, I want you to prove this, that since variance of ui given xi is equal to this, can you prove variance of yi given xi is also equal to sigma square? Can you prove it, guys? Anyone? कैसे करोगे इसको? चलो इसको प्रूव करके देखना. This is for you to prove. I'm not proving this. Next, what we are going to do is the assumption of autocorrelation. Now, autocorrelation basically means that कोई भी आपकी दो एरर टर्म्स हैं, ठीक है, आपकी एक एरर टर्म आ रही है एक एक्स आई के थ्रू, दूसरी एरर टर्म आ रही है एक दूसरे एक्स आई के थ्रू. तो जो एरर टर्म्स हैं, सपोज एक एरर ये आ गई एक्स आई और ये आ गई एक्स जे, इनके जो एरर टर्म्स हैं, इसकी जो एरर टर्म्स हैं उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलेंगे यू आई. इसके जो एरर टर्म्स हैं उसको बोलेंगे सब यू जे. ये यू आई और यू जे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो होना चाहिए. उसको हम बोलते हैं नो ऑटो कोरिलेशन. ठीक है, तो ये जो अजम्पशन है इसको हम बोलते हैं, इसको हम कोवेरियंस के फॉर्म में भी बोल सकते हैं. इसको हम बेसिकली बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ यू आई यू जे विल बी इक्वल टू ज़ीरो. इसको लिखने का दूसरा एक और तरीका है, कोवेरियंस यू आई यू जे गिवन एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू ज़ीरो. एंड इफ यू हैव टू प्रूव दिस, गाइज, व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज आपकी fifth assumption, since this is also a very important assumption, I'll write it in this: no auto correlation. This basically means covariance of ui uj is equal to 0 for I not equal to j, also written as covariance ui uj
given xi xj is equal to 0. You can write this as covariance को कैसे लिख सकते हो, expected value of ui minus expected value of ui given xi into uj minus expected value of uj given xj. ये लिख सकते हो guys. This is how you write covariance. And can you tell me कि इसके बाद क्या हो जाएगा guys? Can you see कि ये ज़ीरो आ रहा है guys? Yes, sir. कैसे है ज़ीरो, कैसे आ रहा है? ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई गिवन एक्स आई एंड यू जे गिवन एक्स जे. ये बच जाएगा आपके पास, ये हमें पता है ये ज़ीरो है. ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास इस तरीके से आपके पास ये अजम्पशन की प्रॉपर्टी आती है. So these are very important assumptions. Again, as I told you, the second most important chapter that you are going to do is going to be autocorrelation. And in autocorrelation, we will be dealing with this in a very extensive manner. और उसके ऊपर again 15 to 20 marks, 15 marks का तो question होगा ही होगा. ठीक है. So autocorrelation as well as heteroscedasticity, guys, this you will have to face later on. So it's better that you take care of it. ठीक है. We also call this assumption as no serial autocorrelation. We also call it as no serial autocorrelation. ठीक है, इस तरीके से. तो और ये जो हमें ऑटो कोरिलेशन की जो प्रॉब्लम मिलेगी, ये मेजरली हमें टाइम सीरीज डेटा में मिलती है. टाइम सीरीज डेटा. कैन समवन एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होगा? सो बेसिकली आई एम सेइंग यू टी जो है, वाई टी जो है, वो डिपेंड करेगा एक्स टी के ऊपर भी, एक्स टी टाइम के ऊपर भी, यू टी के ऊपर भी, और हो सकता है यू टी -1 के ऊपर भी डिपेंड कर जाए. कैन समवन गिव मी एन एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एग्जाम्पल, जहाँ पर एरर्स जो होंगे, पिछले बार के एरर्स जो होंगे या पिछली बार का इनर्शिया जो होगा वो इम्पैक्ट कर सकता है. Expectation of inflation. एनीथिंग फॉर दैट मैटर. इकोनॉमिक्स में हर चीज़ में लैग होता है कुछ ना कुछ. आज आपकी इकोनॉमी जो है 8% से ग्रो कर रही है, अगर सपोज करो -8% से, तो उसका इनर्शिया भी आपको ले जाएगा. तो अगर आज आप कोई मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपको तीन क्वार्टर बाद भी नज़र आएगा. सो एवरी चेंज दैट यू डू इन दी डायनामिक मॉडल, उसका इम्पैक्ट आपको कई क्वार्टर्स तक दिखता है. सो दैट इज़ वाई यू सी दैट योर एरर्स जो हैं, आपके एरर्स जो हैं वो कोरिलेटेड होंगे. आपका वाई जो है वो पिछले वाइज पे भी डिपेंड करेगा. तो इन सारी चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. सो दीज आर कॉल्ड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स. AR1 AR2 हम इसके बारे में बात करेंगे. AR1 क्या है, AR2 क्या है. यहीं पे आपका आप इस सेमेस्टर में तो नहीं पढ़ोगे, अगर इफ़ यू टेक एडवांस ट्रिक्स देन यू विल टॉक अबाउट अरीमा मॉडलिंग, कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडलिंग कैसे होती है. तो और वो वही हमारा इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर व्हेन यू गो इनटू मैक्रो, तो हम अरमा और अरीमा मॉडलिंग करते हैं. ठीक है, कि जब आपका एक y जो है, सपोज 2021 का y जो है 2020 के y पे भी डिपेंड करेगा, 2019 के y पे भी डिपेंड करेगा, तो आपका आउटपुट बहुत क्वार्टर्स पीछे, और नॉट जस्ट दिस, आपका बहुत सारी और चीज़ों पे डिपेंड करेगा जो पिछली बार की आपकी वेरिएबल्स हैं. सो ऑल ऑफ दैट इफ़ यू सी, तो ये इस तरीके से मॉडलिंग करते हैं. बट इन प्योर जब हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो वी अज्यूम कि हमारा ऑटो कोरिलेशन नहीं है या सीरियल कोरिलेशन नहीं है. सो लेट्स मूव ऑन. So this is what it says. There is no systematic relationship between the two variables, two error terms. ठीक है. In short, the assumption of no correlation means the error terms are random. ठीक है. और अगर error terms random हो गए guys, उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से क्या होगा, that means any two values of yi are also uncorrelated. ये यहाँ से ही आया है, yi yj is also equal to 0. Then the next assumption is there is no specification bias. There is no specification bias. ये एक और assumption है of the model. Then there are certain other small assumptions जो आपकी books में दे नहीं रखा है.
एक और assumption आप लिख सकते हो guys. Okay, just write one more assumption guys in your copies. एक तो मैंने बोला मॉडल में स्पेसिफिकेशन, मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है. एक और assumption लिख लो, इसके ऊपर हम चैप्टर पढ़ेंगे, which is no perfect multicollinearity. No perfect multicollinearity. Multicollinearity. No perfect multicollinearity among explanatory variables. That means आपका एक वेरिएबल और दूसरा एक xi और दूसरा xi जो है, ये अजम्पशन जो है इसी आपको 3 वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर भी मिल जाएगी. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिफोर हैंड कि 3 वेरिएबल्स पहले बता देता हूँ कि नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है. कि एक x2 है और एक x3 है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि x2 शुड बी इक्वल टू a प्लस बी x3. आपके एक x और दूसरा x परफेक्टली कोलिनियर नहीं होना चाहिए कि एक पता चल गया तो दूसरा भी पता चल जाएगा आपको. अगर ऐसा हो जाएगा तो बीटास जो हैं, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ बीटास. ठीक है, तो ये एक असम्पशन होती है विच वी विल ऑल्सो डील इन मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन. ठीक है ना. So with these assumptions out of the ways, if you see my class notes, you will find 2-3 more assumptions guys. For example, covariance of UI UX is equal to 0, ये आपको एक assumption मिल जाएगी. तो वो if you want to see, तो वो दो assumptions को मिला के ये वाली assumption बन जाती है. But in general these are the major 2 assumptions. Apart from that there are some small assumptions कि आपका जो variance of xi है which should be greater than 0, and your number of observations should be greater than the number of parameters. ये कुछ छोटी और assumptions होती हैं, but those are very very small and naive kinds of assumptions जो hold करनी ही चाहिए. Now let's talk about the variances and standard errors, the variances and the standard error of ordinary least square. ठीक है, पहले गाइज आपको एक जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि आपको ये निकालना आना चाहिए, स्पेशली वेरिएंस ऑफ B2. हाउ डू यू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ B2. ठीक है, अभी हमें ये पता है कि B2 की वैल्यू क्या है, हमें पॉइंट एस्टिमेट पता है. ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट हमें पता है कि क्या है ये समीशन. कैन समवन से गाइज what is the value of B2? Great. Can someone give me another value of B2? Covariance of xy upon variance of x. Good. So guys please again and again I'm requesting you, ये values याद रखो. B1 की वैल्यू क्या होती है guys? B1 की वैल्यू किसी को याद है? Simple, it passes through the regression through the means guys. Y bar minus B2 x bar. ठीक है. Now we are going to talk about the variance of your B2. क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर गाइज हमें x बार के बारे में क्या पता था. जब हम x बार के बारे में बात करते हैं, x बार के बारे में हमें पता था इसका मीन ये है और इसका वेरिएंस ये है. तो हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली थी. और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपके पास ये दो पैरामीटर्स किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, यू टॉक अबाउट एनी एस्टिमेटर, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए. जब तक हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होगा तब तक हम उसका एस्टिमेट्स नहीं निकाल सकते. सो what we need to see is that what is the standard error, या standard error को हम precision भी बोलते हैं guys. We also called standard error as precision. ठीक है, तो हमारा standard error जो है वो क्या है. ठीक है, और फिर हम उसके बाद कुछ चीज़ें बताएंगे अबाउट दिस B2 कि B2 जो है वो ब्लू है या नहीं है. वी विल चेक वेदर B2 इज़ ब्लू. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इट मीन्स बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर. दिस इज़ द बेस्ट क्लास ऑफ एस्टिमेटर दैट यू कैन गेट. बेस्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे आप, जैसे OLS एक मेथड है, मैंने आपको बताया था कि OLS के अलावा यू हैव GLS, you have MLE as well. तो बेस्ट का मतलब होता है कि अलग अलग एस्टिमेटर्स, अलग अलग मेथड्स, आपको अलग अलग एस्टिमेटर मिलेंगे. एक से आपको B2 मिला, एक से आपको B2 स्टार मिला, एक से आपको B2 हैट मिला. अलग अलग मेथड से आए हैं. ये OLS से आए, बाकी किसी मेथड से आए.
हम ये बोलते हैं कि जो OLS से मेथड से आएगा वो उसका वेरिएंस सबसे कम होगा, इसीलिए वो बेस्ट होगा, लीनियर होगा, इट विल बी लीनियर इन योर एक्सरसाइज, एंड इट विल बी अनबायस्ड, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2 विल बी इक्वल टू β2, और एस्टिमेटर तो है ही है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो OLS एस्टिमेटर्स के साथ में हैं, ठीक है। बाकी एस्टिमेटर्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि वो ब्लू एस्टिमेट्स, ठीक है। सो गिवन द assumptions of classical linear regression model, we will show that the parameters that you will get, the OLS estimators that you will get, B2 and B1 are linear, unbiased, and has the minimum variance, ठीक है। ये हमारे होते हैं। let's talk about these now, ठीक है। ये हमें प्रूव करना होगा, and if you see the appendix of this chapter, you will find appendix के अंदर you will find the proof of this as well, but this is a proof which is often asked, so I will cover up this proof. Guys, you want me to do this proof or you can do it on yourself by yourself? Guys, you want me to do this proof? 2 लोग ही सुन रहे हैं क्लास को, ठीक है। let's do this proof, guys. Now, linear and unbiasedness properties of OLS estimate. पहले हम linear and unbiasedness के बारे में बात करेंगे, ठीक है। So we need to prove first OLS estimators are blue. अभी हम बात करेंगे linearity की and unbiasedness की, फिर हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की। Now we know that B2 is equal to summation xi yi upon summation xi square. We can write this as summation xi capital Yi upon summation xi square. Right guys, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेटिव हैं, इसको आप कैपिटल फॉर्म में भी लिख सकते हो। Then you can also, now suppose ये जो मैं टर्म डाल रहा हूँ गाइज उसको हाईलाइट करके डाल देना, क्योंकि इसको हम आगे भी बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज KI इज इक्वल टू समेशन XI अपॉन समेशन XI स्क्वायर, सॉरी गाइज, जस्ट सेकेंड। KI इज इक्वल टू XI अपॉन समेशन XI स्क्वायर। ये आपका कोई पर्टिकुलर वेरिएबल आपने लिया है KI, ठीक है, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन XI। तो ये KI जो है इज XI अपॉन XI स्क्वायर। इफ दिस इज ट्रू then I can write this as summation KI YI. Clear guys? Now this makes B2 a linear function of YI. तो हम linearity की बात करते हैं कि इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये रैंडम वेरिएबल बन गया, बेसिकली लीनियर फंक्शन बन गया। लीनियर फंक्शन कैसे बन गया, लेट्स सी दिस। व्हाट विल यू राइट B2 एज? B2 विल बी इक्वल टू K1 Y1 प्लस K2 Y2 प्लस K3 Y3 टिल Kn Yn. Isn't this a linear function of YI? और YI किस पे डिपेंडेंट है? एक्साइज पे। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि B2 इज़ अ लीनियर एस्टिमेटर बिकॉज इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ YIs विद KIs। क्या है? ये KIs एक तरीके के हर YI का वेट है। दिस इज समथिंग लाइक वेट्स, दीज आर समथिंग लाइक वेट्स, वेटेड सम। समझ में आया गाइस? लीनियर तो हमने बहुत इजीली प्रूव कर दिया। नाउ let's talk about certain other properties of KI, क्योंकि जब तक आप KI की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बात करोगे you will not understand and you will not appreciate कि हमारा जो वेरिएंस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। सो that is required a little job. Now let's write certain properties of KI. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है गाइस, you will be using them again and again
स्पेशली व्हेन यू ट्राई टू गेट द मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी. एक क्वेश्चन आता है, बहुत ऑफन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, प्रूव वेरिएंस ऑफ B2 इज अनबायस्ड एंड मिनिमम. ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है. एंड until unless you know this, you will not be able to do this question, ठीक है. Just look at the 10 years, you will find questions on this. After we finish chapter number 3 and chapter number 4, we will move on to the 10 years. We will solve most of the 10 years, and then only then we will start with the other chapters, which is basically your functional forms and other types. ठीक है. तो every chapter we will stop, reflect back, and then we will move. ठीक है. चलो. All of you have 10 years, guys. All of you have 10 years. So please buy 10 years, guys. Please buy it online, जैसे भी है, so that we can proceed with questions. Because पढ़ना एक चीज़ है, until unless you write these, you see these questions, you'll not have a feel of the paper. ठीक है. And it's a very lengthy paper, by the way, guys. Econometrics by far is the most lengthy paper. किसी ने readings order करी? Has anyone ordered the readings? No one? No, sir, not yet. अच्छा. So you Ordered them from. अच्छा, you will be surprised when you get your econometrics readings. ठीक है. Your econometrics readings is almost equivalent to the other 3 readings. ठीक है. चलो. Now, by the way, guys, don't buy contemporary economic issues. Contemporary economic issues will start late January, because उसका syllabus अभी decide नहीं हुआ. उसका syllabus change होगा और उसमें नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा, नया बजट आएगा, तो वो चीज़ें इंक्लूड होंगी. पुराने वाले जो रीडिंग्स हैं वो तो ऑल्सो दैट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो वो देखना चाहो तो देख सकते हो. बट मेजर पोर्शन जो है उसका जो नया आएगा वो सर्वे और बजट के बाद आएगा. सो समटाइम इन द फर्स्ट वीक ऑफ February यू कैन देन ऑर्डर योर रीडिंग्स. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ KI. पहली प्रॉपर्टी देखते हैं KI की. KIs जो हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? KI इज इक्वल टू XI अपॉन समेशन XI. नाउ कैन समवन टेल मी कि KI स्टोकेस्टिक होगा कि नॉन स्टोकेस्टिक होगा? KI रैंडम होगा कि नहीं रैंडम होगा? नॉन स्टोकेस्टिक होगा. क्यों नॉन स्टोकेस्टिक होगा? ब्यूटिफुल. सो बेसिकली बिकॉज XIs आर नॉन स्टोकेस्टिक, KIs आर नॉन स्टोकेस्टिक. और इसका एक फ़ायदा होगा, जब भी हम इसका समेशन लेंगे तो इसको इजीली सम आउट कर सकते हैं. ठीक है. देन सेकंड थिंग इज व्हाट इज समेशन KI. समेशन KI क्या होगा? समेशन KI इज XI अपॉन समेशन XI स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू समेशन XI अपॉन समेशन XI स्क्वायर. And just a second, I'm missing a step. This should be equal to 0. There's a step that I'm missing here. Summation XI upon summation XI square. This is equal to 0. Guys, can someone tell? अच्छा, I forgot कि ये 0 क्यों होगा. Can someone tell कि ये 0 क्यों होगा, guys? Anyone? अच्छा, XI की डेफिनेशन क्या होती है स्मॉल XI की? Summation XI minus X bar. हाँ, उसका समेशन करोगे तो? So there is a rule that it will always be equal to 0. Yes, simple. XI minus X bar. स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि the sum of basically deviation from your mean is always equal to 0. तो ये 0 हो गया क्योंकि ये न्यूमरेटर 0 है. ठीक है. देन the next thing is, अब हम इस चीज़ को जो हमारा XI समेशन KI YI था,
इसके अंदर हम yi सब्स्टिट्यूट करेंगे और b2 की वैल्यू जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे कि वो इन टर्म्स ऑफ ui कैसे लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। हम b2 को ui और xi की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्योंकि वो अगेन एक अनदर प्रूफ दैट वी विल बी नीडिंग, ठीक है। अनबायसनेस के लिए हमें वो प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है। थर्ड थिंग इज समेशन ki yi, ठीक है, सॉरी कैपिटल yi है, capital yi. Can I write this as ki beta 1 plus beta 2 xi plus ui? Can I write it like this? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके अंदर की बीटा वो जो PRF की वैल्यू है वो डाल दी। I have just substituted PRF in yi, और कुछ नहीं किया, ठीक है। If I open this up, what will I get? I will get beta 1 summation ki plus beta 2 summation ki xi plus summation ki ui. This is what I'll get. What will this be, guys? ये क्या होगा? 0. ये 0 हो गया। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा बीटा 2 समेशन ki xi प्लस समेशन ki ui, ये बचा आपके पास। वी विल टेक दिस फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज समेशन ki xi। अब हमें प्रूव करना है, बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि वी वांट टू prove that the expected value of b2 is equal to beta 2। हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं and this will be unbiasedness, ठीक है। हम अनबायसनेस की प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं and to prove the property of unbiasedness, ठीक है, we need that this b2 should be equal to beta 2, ठीक है। और दूसरी अनबायसनेस की प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b1 इज इक्वल टू beta 1। नाउ लेट्स प्रूव दिस। टू प्रूव दिस व्हाट यू नीड टू डू इज, अब जो हमारे पास जो वैल्यू आई है b2 की, हम उसी को यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ दैट। b2 इज इक्वल टू, हमें पता है बीटा 2 expected value of xi ki plus expected value of ki ui। now इन दोनों को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? कैन यू थिंक हमें क्या करने की ज़रूरत होगी गाइस? क्या करने की ज़रूरत होगी हमें? सोचो। कैन यू सी गाइस, कैन यू फोरसी? हमें इसको 0 प्रूव करना पड़ेगा और इसको 1 प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b2 को बीटा 2 बना पाएंगे, ठीक है। So let's see this. How do we prove this? We prove it through हम लेते हैं थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट ले लो। ये इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ का ही फोर्थ पार्ट ले लो, विच इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ki xi इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ki कैपिटल xi इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ki xi अपॉन xi स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। आप चाहे उसको ऐसे लिख लो, चाहे आपको उसको ऐसे लिख लो, बात एक ही है। इफ़ यू एक्सपैंड दिस you will basically get summation ki equal to xi minus x bar, यही आएगा। तो उसमें x बार वाले का तो कोई वो यूज़ नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा तो उसका सम जो हो जाएगा समेशन ki का, तो हमें पता है 0 ही है, ठीक है। सो दैट विल बी यूजलेस। तो इसीलिए वेदर यू राइट इट लाइक दिस और यू राइट इट लाइक दिस, बात एक ही है। एंड व्हेन यू समेट दिस, जब इसकी वैल्यू ki की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये आएगा, और ये हमें पता है 1 है। सो नाउ यू नो दैट योर b2 is equal to, you have reached a stage where you know your b2 is equal to
बीटा टू प्लस समेशन के आई यू आई। इस स्टेज पे आप पहुंच गए हो। Now all you need to do is take expectations here now. What is the expectation of B2? Expectation of B2 is basically बीटा टू की एक्सपेक्टेशन बीटा टू ही रहेगी प्लस के आई, ये नॉन स्टोकेस्टिक है, बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई, ठीक है। एंड सिंस यू आई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो, हमें पता ही है कि ये हमारी अजम्पशन ही है, और ओ एल एस से भी हमें पता चल गया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन that expected value of B2 is equal to beta 2. So we have proved the property of unbiasedness, ठीक है। और एक फिफ्थ और प्रॉपर्टी लिख लो गाइस, प्लीज राइट डाउन अ फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ के आई, समेशन के आई स्क्वायर इज बेसिकली दिस। तो इसको यहाँ से काट दो तो आपके पास 1 समेशन एक्स आई स्क्वायर बच जाता है, ठीक है। दीज आर दी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ के आई दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके तो हमने अनबायसनेस की प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, ठीक है। बट जो 5th प्रॉपर्टी है उसका हम एक्सटेंसिव यूज़ करेंगे टू प्रूव दैट योर वेरियंस, द वेरियंस ऑफ B2, व्हाट इज़ द वेरियंस ऑफ B2, ठीक है। ये हमें प्रूव करना होगा। सो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट ऑल ऑफ दिस। समझ में आया गाइस? पक्का सबको ये प्रूफ समझ में आया? ठीक है, चलो। द नेक्स्ट पार्ट इज द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ OLS एस्टिमेट्स, ठीक है। द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ OLS एस्टिमेट, इसके लिए एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगेन that is something that you need to do it on your own. What I am leaving for you is, this is your homework. And guys, मैंने अपने लास्ट बैच को भी बोला था कि जो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, चलो लास्ट बैच का तो पेपर हुआ ही नहीं, बट लास्ट टू लास्ट बैच जो है, जो तुम्हारा पास आउट बैच हो गया है, उनको मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। दे डिड नॉट डू दोज क्वेश्चंस एंड अल्टीमेटली उससे 2-3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। वेरिएंस ऑफ B1 आपको प्रूव करना होगा, सॉरी वेरिएंस ऑफ B1 आपको प्रूव करना है, ठीक है। I'll give you that value कि शो दैट दिस इज़ द वेरिएंस ऑफ B1, ये आपको प्रूव करना है। आई विल शो यू ओनली वन पार्ट विच इज़ वेरिएंस ऑफ B2, वेरिएंस ऑफ OLS estimates, which is basically saying variance of B2 and B1. अभी हम B2 के बारे में बात करेंगे। Now what is the variance of B2? The variance of B2 is nothing but expected value of B2 minus expected value of B2 whole square. This is how you say you calculate variance. Now we know that हमें पता है कि this is nothing but expected value of B2 minus beta 2 square. Can I write this, guys? And if I can write this, why can I write this? Because we just proved that unbiasedness property, expected value of B2 is equal to beta 2, ठीक है। हमने वो रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। Now we also know that this is equal to, now this is equal to summation ki ui square. Can someone tell me how? Anyone? Okay, see this, ये वाली इक्वेशन दिख रही है, ये अभी हमने प्रूफ करी थी पिछले उसमें। तो B2 इज इक्वल टू बीटा 2 प्लस समेशन के आई यू आई। तो B2 माइनस बीटा 2 क्या होगा? समेशन के आई यू आई। सिंपल, आई हैव जस्ट यूज्ड इट हेयर। समझ में आया भाई? Yes. जो पिछले प्रूफ था उससे आई हैव यूज्ड इट। नाउ जब भी गाइज ऐसा कुछ आएगा ना आपके उसके अंदर, व्हाट यू डू इज दिस सीम्स वेरी इनॉक्यूअस कि अच्छा इसको कैसे प्रूफ करना है, तो कुछ मत क्या करो, इसके अंदर आप इसको A11 डाल के सोचा करो कि ये K1 है और U1 है और 2 वैल्यूज़ हैं। सो इसको 1 और 2 अज्यूम कर लिया करो। तो सपोज मैं इसको लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज K1 U1 प्लस K2 U2 का स्क्वायर।
इस तरीके से अगर इसको इमेजिन करके लिखोगे तो इसको खोलना भी आसान हो जाएगा और इसके साथ वर्क करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है. सो इफ आई ओपन दिस अप गाइस, इफ आई ओपन दिस अप, आई विल गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ k1 u1 स्क्वायर प्लस k2 u2 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर टाइप. ऐसे ही अगर n टर्म्स हैं तो क्या होगा, kn u1 स्क्वायर, ठीक है. और प्लस फिर 2ab वाली टर्म्स आएंगी, 2k1 k2 u1 u2, ये 2ab वाली टर्म्स आ जाएंगी. ऐसे ही अगर आप चलते रहोगे तो क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगी, 2kn-1 kn un-1 un. समझ में आया गाइस ये ओपनिंग अप, ठीक है. अब जब इसके अंदर एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर अगर आप एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू करोगे, पहली बात तो ये सारे के सारे टर्म्स को क्या होगा, कैन समवन टेल व्हाट विल हैपन टू ऑल दीज टर्म्स, क्यों दे विल बिकम ज़ीरो, बिकॉज इसके अंदर जब आप एक्सपेक्टेड लगाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 u2 ऐसी ये आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ un-1 un. हमें पता है कि नो ऑटो कोरिलेशन की हमारे पास अजम्पशन है, which basically means that any expected value of ui uj will be equal to 0, ठीक है. एंड इन सब से क्या आएगा, इन सब से हमें पता है that expected value of any ui, ki तो बाहर हो जाएगा, any ui square is equal to sigma square. So this will, और ये कहाँ से है, ये assumption आई from assumption of homoscedasticity. So all you will be left with is summation ki square sigma square. क्या बच जाएगा, हर एक के आगे क्या बचेगा, यहाँ पर देखो, चेक करो क्या बचेगा, k1 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, k2 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर. जब एक्सपेक्टेशन ले लोगे kn स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो इसको कैन आई राइट दिस एज सिग्मा स्क्वायर summation ki square. Can I write it like this guys? Yes sir. और summation ki square का फॉर्मूला क्या है, 1 by summation xi. बस that's all. So we just proved that variance of B2 is equal to sigma square summation ki square, which is nothing but sigma square upon summation xi square. Please note it down guys and put it in a box at the end of your register as well, because this again will be used many times. Sir, could you please show the previous slide once? Thank you, sir. ठीक है. Now the homework for you guys is you need to prove variance of B1 is equal to summation xi square upon n summation xi square into sigma square. Prove this. And by the way guys, standard error क्या होगा, इसका standard error is nothing but इसका standard deviation, तो summation upon summation, sigma upon summation, ठीक है. This is standard error of B2. Now guys, we already have, हमें क्या क्या मिल गया guys, can we now find an interval? All of you guys, can we now find an interval? हमारे पास क्या है guys, हमारे पास B2 की कोई डिस्ट्रीब्यूशन है. ये किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है guys, ये B2 की डिस्ट्रीब्यूशन है. पहली बात तो ये सोचो, इस B2 की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा guys, what will be the mean guys, what will be the mean of B2 का डिस्ट्रीब्यूशन guys. ये B2 की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे x बार का डिस्ट्रीब्यूशन होता. Do all of you agree this will be equal to beta 2? What is the expected value of B2? मीन क्या है, हमने अनबायसनेस जब शो करी तो expected value of B2 is equal to beta 2 ही तो दिखाया हमने. Isn't it similar to x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका जो मीन था वो म्यू था. समझ में आया गाइस, यस और नो. और ये B2 की अलग अलग वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनेगी B2 की, कैन एनीवन अनम्यूट करके बताओ गाइस, डोंट टाइप इट आउट. B2 की अलग अलग वैल्यू क्यों आएगी, ये कैसे आ रही होगी अलग अलग B2 की वैल्यू.
हेलो गाइस, B2 की वैल्यूज़ बहुत सारी कैसे आएंगी, या B1 की वैल्यूज़ बहुत सारी कैसे आएंगी, एक्स बार की बहुत सारी वैल्यूज़ कैसे आ रही थी। हाँ, तो B2 की वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, डिफरेंट सैम्पल से डिफरेंट रिग्रेशन लाइंस बन रही हैं। अरे यही तो हमने बात करी थी कि सैम्पल रिग्रेशन लाइन तो बहुत सारी हो सकती हैं, हर सैम्पल एक सैम्पल रिग्रेशन लाइन दे देगा। तो अगर सैम्पल रिग्रेशन लाइंस बहुत सारी होंगी तो अलग अलग सबके सबके स्लोप्स अलग अलग होंगे। तो ये सारे जितने भी सैम्पल्स हैं उन सबके स्लोप्स हैं अलग अलग। उन सारे स्लोप्स का एवरेज जो है वो एक्चुअल बीटा के इक्वल होगा, एक्चुअल बीटा 2 के इक्वल होगा, और इसका जो वेरिएंस है वो ये वेरिएंस है। एंड अब हम इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज निकाल देंगे कुछ, इसको z फॉर्मेट में लेके जाएंगे। इसको तो नहीं निकाल सकते, हम इसको z फॉर्मेट में लेके जाएंगे गाइस। ऑल ऑफ यू अग्री? हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं गाइस? किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे? हाँ, कैसे करते हैं उसको? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन करते हो, यही करते हो ना कि उस किसी भी वेरिएबल का करना होगा तो कैसे करोगे? इस केस में क्या होगा? इस केस में B2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 जो होगी वो तो हमें पता ही है खैर कि वो ज़ीरो हो जाएगी, बट B2 माइनस β2 अपॉन सिग्मा डिवाइडेड बाय दिस। ऑल ऑफ यू अग्री दिस विल बी अ z डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा ये था ना स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका, हमने B2 को स्टैंडर्डाइज कर दिया यहाँ पर। अब ये पता है हमें कि ये z है, अब हमें ये पता है कि ये z है, तो अब हम इसका आसपास का पूरा एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमें पता है z है। अब हम इसका एक इंटरवल निकाल लेंगे और उस इंटरवल में बोलेंगे कि B2 लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आएगा इसके हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं। चलो, सो व्हाट आई डू इज़ आई स्टॉप हार्ड स्टॉप हेयर बिकॉज फिर और ज़्यादा प्रूफ्स हो जाएंगे। व्हाट वी हैव कवर्ड गाइज इज थोड़ा थोड़ा, अरे चलो अगली क्लास में पूरा भी। क्या समझ नहीं आया मेगा बताओ? एंडिंग में समझ नहीं आया मुझे। एंडिंग में क्या समझ नहीं आया बताओ? आई जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। हम बेसिकली किसी भी वेरिएबल को मेगा स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। उसको तरीका क्या होता है कि वो वेरिएबल जो अपने सैंपल से वैल्यू आ रही, सॉरी ये एक्स बार लिख दिया था मैंने, ये एक्स आई होना चाहिए था स्टैंडर्डाइज करने का तरीका। एक्स हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस उस जो भी मीन आ जाएगा उस डिस्ट्रीब्यूशन का अपॉन उसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन। इस तरीके से अगर हम किसी भी वेरिएबल को चाहें तो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल बन जाएगा विद मीन 0 एंड वेरिएंस इज 1। यहाँ पर हम B2 की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, B2 माइनस B2 का मीन विच इज़ β2 अपॉन B2 का स्टैंडर्ड डिविएशन, हमने वो कर दिया तो ये z वेरिएबल बन जाएगा। अब ये z वेरिएबल कैसे बन गया? ये z वेरिएबल इस तरीके से बन गया है कि ये यहाँ पर 0 वैल्यू है और इसका वेरिएंस 1 है। अब हम ये वाली रेंज निकाल सकते हैं, ये वाली रेंज की 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में कहाँ लाई करेगा। ठीक है, विल टॉक मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास कि किस तरीके से वी विल फाइंड आउट दैट रेंज, और फिर वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे। z टेबल में जाके हम चेक करेंगे कि अच्छा ये वैल्यू कहाँ है, क्या क्या आ रही है, एंड कैन वी से दैट B2 इज इक्वल टू 0 और नॉट, β2 इज इक्वल टू 0 और नॉट। विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी, इवन इफ यू मिस्ड अ कपल ऑफ क्लासेस शुरू की, वी विल कवर इट। ठीक है, बाकी क्लास को गाइस समझ में आया, प्रूफ समझ में आया सबको? I just had a small doubt. यस With other yes, I've not done blue, Nikita, I've not done the property of blue, I've just दूसरे मेथड भी पढ़ेंगे B2 निकालने के लिए। हम दूसरे मेथड इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, बट वी विल कंपेयर इट विद सम अदर मेथड, कि मतलब कोई भी और मेथड ले लेंगे। आई विल प्रूव इट इन द क्लास दैट सपोज वी टेक एनी अदर मेथड एक्सेप्ट फॉर OLS। ठीक है, इट विल गिव अ वेरिएंस विच विल बी मोर देन दिस। हमें यही तो प्रूव करना है ना, दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर मेथड विच विल गिव अ मिनिमम वेरिएंस। हमें ये प्रूव करना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन प्रॉब्ली स्टडी MLE से क्या आएगा या किसी और मेथड से क्या आएगा, दैट वी कैन ऑल्सो डू। बट इन जनरल वी विल से OLS जो है वो बेस्ट एस्टिमेट देगा, और बेस्ट का मतलब यहाँ होता है मिनिमम वेरिएंस। बट आई हैव नॉट येट डन मिनिमम वेरिएंस एट ऑल। अभी सिर्फ मैंने लीनियरिटी एंड अनबायसनेस के बारे में बात करी है, दैट पार्ट इज स्टिल लेफ्ट। चलो, सो दैट वी कैन कवर इन द नेक्स्ट क्लास।